Hello friends, welcome again to GIS ePathshala. So friends, today we are going to start our chapter number 5, that is lines and angles. So we know the different types of the lines, line segment and the rays, okay, that we learned in the previous classes. So here it is given, this one is the line segment. Okay, line segment जो होता है उसका एंड कहाँ से होता है, दोनों पॉइंट एंडिंग पॉइंट होते हैं और जिसकी लेंथ होती है वो डिफाइनाइट होती है, मीन्स फिक्स्ड होती है. उसके बाद लाइन, लाइन मीन्स ये लाइन है, उसकी दोनों साइड एरो होते हैं, मीन्स लाइन होगी उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, वो इनफाइनाइट तक जाती है. ओके, लाइन. और नेक्स्ट इज द रे. रे किसको बोलेंगे हम कि एक ओरिजिन एक जगह से निकले और दूसरी ओर एक और जाती है, एक बाजू एरो होता है, दिस इज कॉल्ड द ray. Now we should know the difference between line segment, line and the ray. Okay, now the next thing is the angles and the intersecting line. Intersecting lines means जो दो लाइन एक दूसरे को मिलती है. ओके, यहाँ पे दिस लाइन PQ एंड लाइन RS मीटिंग एट पॉइंट O, दोनों O के ऊपर मिलती है, सो उसको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, सो इन द ट्राइंगल देयर आर 3 एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, दैट वी शुड नो, हमको ये पता होना चाहिए. नाउ लेट वी सी द रिलेटेड एंगल्स. Next exercise 5.2, sorry, not exercise but theory, that is the related angles. So first is the complementary angles. So friends, हम complementary angle किसको बोलेंगे, कोई भी दो एंगल दिए हैं और वो दो एंगल का सम 90 डिग्री है, सो हम बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं. सो दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिंपली हमको इतना याद रखना है, कोई भी दो एंगल है उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए. So here two angles are given, 30 degree and 60 degree. If we do 30 plus 60, so we got 90 degree. So question is this, are these two angles are complementary? So we have to give answer yes. Now here 35 and 65. So if we do the 35 plus 65, so we will get 100. So these two angles are not complementary. So no, it is written over here. So this is the complementary angles. आपको कोई भी angles दिए हैं और पूछा है कि is these angles are complementary or not. So what we have to do, we have to simply just add these two angles. If the addition is 90 degrees, so we can say that these two angles are complementary, otherwise not. Okay, here try this is given. So let me see in the try this. In this try this, 70 degree and 20 degree. So 70 plus 20 is equal to 90. So these two angles are complementary angles. 75 plus 25. So if we do 75 plus 25, so 100. So these two angles are not complementary. 55 plus 35. 55 plus 35, so 90. So these two angles are complement. Yes. 48 and 52. If we do the addition of these two, so we will get 100. So it is also not complementary angles, not complementary angles and complementary angles. Okay. Now question 2. What is the measure of the complement of each of the following? नीचे जो दिए है उस complement angle कौन से होंगे? So to find the complement angle, simply जो एक एंगल दिया है उसमें से हमें 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. So 90 minus 45. If we do 90 minus 45, so we will get 45. So इसका complement angle होगा 45 degree. Okay. If we do 90 minus 65, so we will get 25. 90 minus 65, so 25. So इसका complement angle होगा 25 degree. Now the next is 41. So 41 का अगर हम complement find करें, so होगा 49. ओके, और 54, सो 90 माइनस 54, सो वो होगा 64. ओके, सो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल, सॉरी 36. सो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल. नाउ द नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आए, सो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. नाउ इन द सप्लीमेंट्री एंगल, if we do the addition of any two angle and if we got the addition is 180 degrees, so they are called the supplementary angles. कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पे हमको दिया है फर्स्ट 60 एंड 120, सो 60 प्लस 120, सो हमको मिलेगा 180. सो दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ हियर 112 एंड 68, सो इफ वी डू द एडिशन ऑफ 112 एंड 68, so we will get 180 degree. So this is also the supplementary angles. Okay, now here it is given 100 degree and 80 degrees. 100 plus 80, 180, so they are also supplementary. 135 and 45, so 135 plus 45,
Yes, 180 degree. So they are also supplementary angles. Now try this 110 plus 100 plus 50, so 160. So not supplementary angles. 105 plus 65, so 170 degree. Addition of these two 170 degree. So not supplementary angles. 50 plus 130, तो 180 supplementary angles. 45 plus 45, तो दोनों का एडिशन होगा 90 डिग्री. सो दिस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हमें यहाँ पे लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, और नॉट सप्लीमेंट्री. नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज गिवन. व्हाट विल द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल. इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. सो 180 माइनस 180 माइनस 100, सो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री. 90 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 90, सो 90. 55, so 180 minus 55. If we do 180 degree minus 55, so we will get 125. So इसका supplementary angle हुआ 125. And next what 125. So 180 degree minus 125. 180 minus 125. So हमें मिलेगा 55. Okay, so these all are the supplementary angles. So friends, अभी तक हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जो भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, और कोई भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ नेक्स्ट इज द एडजेसेंट एंगल. सो फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल मीन्स कोई भी दो एंगल है और उसका वन रे होता है. रे कॉमन होना, एक साइड कॉमन होनी चाहिए. यहाँ पे हमको एंगल दिए है, एंगल ए एंगल बी, दोनों में ये साइड है वो कॉमन है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है. सो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है. एडजेसेंट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पड़ोसी एंगल्स, जो एक दूसरे के पड़ोसी है, नेबर है. ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं. सो यहाँ पे हमको अलग अलग एंगल्स दिए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो उसमें ये रे है वो, दिस रे इज कॉमन, सो दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल. हियर angle 1 and angle 2, and in these both angle this one is common, so it is also called the adjacent angle. Now here in this is common, so it is called adjacent angle or not. Okay, so yes, it is also called adjacent angle. If they are not adjacent, then why? क्यों adjacent नहीं है हमें बताना है. Okay, in figure number 5.10 are the following adjacent angle. AOB means this angle, AOB एंड BOC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों. सो यस, यहाँ पे लिखना है यस. नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट इज BOD एंड BOC. BOD एंड BOC मीन्स BOD एंड BOC मीन्स BOD ये पूरा BOD और BOC मीन्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल है नहीं है, क्योंकि BOD के अंदर ही BOC आ गया. सो दे आर नॉट, तो पड़ोसी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. हियर वी कैन से दैट 1 and 2 आर एडजेसेंट और नॉट, क्योंकि 2 के अंदर 1 आ गया, सो दे आर नॉट एडजेसेंट. 1 and 2 एडजेसेंट, यस, सो दे आर एडजेसेंट एंगल. ओके, सो दिस इज द एडजेसेंट एंगल मीन्स पड़ोसी एंगल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंगल्स दैट इज द लीनियर पेयर. लीनियर मीन्स एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर. एक लाइन है सीधी लाइन, इसके ऊपर दो एंगल है 1 2, सो दिस 1 and 2 आर लीनियर पेयर. सो हियर 1 and 2 आर नॉट लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट हियर इट इज गिवन these and these are linear pairs. Yes, these and these linear pair. Yes. ओके फ्रेंड्स, लीनियर पेयर मीन्स जैसे हमने एंगल्स सब देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स. दैट इज हमको पता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल. सो फ्रेंड्स, अगर हम सीधी लाइन है तो वो होगा हमारा स्ट्रेट एंगल. मीन्स ये दोनों का, ये जो दो एंगल बन रहे हैं हमारे, कोई भी दो एंगल बनेंगे वो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री. मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल बना हमारा, स्ट्रेट एंगल मीन्स एडिशन ऑफ दिस टू. इफ यू डू द एडिशन ऑफ दिस टू एंगल, सो वी विल गेट 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है. सो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम होगा 180 डिग्री. सो लीनियर पेयर हम किसको बोलेंगे कि जो स्ट्रेट है और जिसका सम 180 डिग्री होता है. सो हियर 140 प्लस 40, सो लीनियर पेयर. यस, 140 प्लस 40 तो 180 होता है. सो लीनियर पेयर. नेक्स्ट 90 प्लस 60, नो, 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, सो नॉट लीनियर पेयर. 90 प्लस 80 दैट इज द 170, सो नॉट लीनियर पेयर.
नाउ हियर स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो है, कोई भी चलो स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल है, सो लीनियर पेयर है। ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का एडिशन 180 ही होगा। नाउ द नेक्स्ट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मीन्स कोई भी दो लाइन है एक दूसरे को मिल रही है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन और दूसरी लाइन, और सामने सामने जो एंगल है वो 1 and 3, 2 and 4, ये बोल हो गया सब एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकली ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों भी सेम एंगल हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये जो है आयरन बोर्ड, इसके ऊपर दिस एंड दिस एंगल आर सेम एंड दिस आर ऑल्सो सेम। सीजर में भी ऐसा होगा, ये दोनों एंगल सेम हो गए और ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। ओके, now here 1 3 are same, 2 4 are same, 1 3 are same, 2 4 are also same. Okay, so these are called the vertically opposite angles. Okay, so friends, here next thing that is given, we can conclude that when two line intersect, means दो line जब मिलती है, the vertically opposite angles formed are equal. So अब vertically opposite angles जो मिलते हैं वो equal होते हैं। यहाँ पे दो लाइन बनी, so these 2 and 4 are equal and 1 and 3 these angles are equal. Okay, so friend, another thing that is given, if we see here, so 1 and 2, एंगल 1 and 2 वो दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक सिंगल लाइन में है, सो लीनियर पेयर। सो इफ वी डू द एडिशन ऑफ 1 and 2, so we will get 180 degree, and same here, this we consider this is the linear pair, so addition of 3 and 4 is equal to 180 degree. Okay, so here friends, we finished our video. So today we learned about the different types of angle, like complementary angles, means addition of two angle is equal to 90 degree, supplementary angles, addition of two angles is equal to 180 degree, then vertically opposite angle means सामने सामने के एंगल, adjacent angle means जिसकी एक साइड कॉमन है वैसा एंगल। So here we finish our video. Thank you everyone, have a nice day.